Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel PsychEd by Tanya. In today's video, we are going to start with our very first lecture for batch 2026-27 psychology. हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के सिलेबस से एंड इस ईयर क्लास 11th की भी वीडियोस आने वाली है. सो स्टे ट्यून, टेल योर जूनियर्स अबाउट इट. लास्ट ईयर वॉज अमेजिंग. हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी एंड काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ. And I'm glad that you guys studied from me. In this session 2, in this batch 2, we are going to have some amazing practice sessions. We are going to prepare really well so that each one of you score 100 on 100 like I did and like many will have in this batch 2. So waiting for the results right now. इस सेशन में the teaching is going to be more better. There are going to be more practice sessions. There are going to be a lot of different things which I'll put forward. And also इस session में I've started with my own live classes. What's going to happen is I'm going to take your live classes, online classes on Google Meet or Zoom, whichever platform you prefer. And हम वहाँ पर पढ़ेंगे live. You can interact with me one on one. And वहाँ पर हम majority फोकस हमारा रहेगा ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि जितना मैं यहाँ पर नहीं आपको डिलीवर कर पाती वो सारी चीज़ें उन लाइव क्लासेस में होंगी. आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स है, जितने डाउट्स है, हर चीज़ के लिए वेल कोऑर्डिनेटेड सेशंस होने वाले हैं एंड यू विल डेफिनेटली feel the worth of those sessions. So yeah, do register. About this entire live session thing I've already made a video, so do check it out if you haven't yet. And इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टू रजिस्टर इन द क्लासेस. एंड ऑल्सो उस वीडियो में जाकर यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स एंड द लिंक फॉर दैट वीडियो, लिंक फॉर दैट रजिस्ट्रेशन. We'll be starting with our live classes soon, so do check it out if you wish to interact with me directly, study with me one-on-one through live classes. It's going to be an amazing opportunity for you guys, and हम बहुत अच्छे से prepare करने वाले हैं for that. So yeah, stay updated, stay tuned, do register, and without any further delay, let's begin with the video now. We'll take an overview of the chapter and then we'll begin with it. Okay? So after reading this chapter 1, which is variations in psychological attributes, we'll be able to understand the psychological attributes on which people differ from each other. हम पढ़ेंगे about 5 psychological attributes in general and 2 in particular, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे दो individuals आपस में different होते हैं. Learn about different methods that are used to assess psychological attributes. इन attributes को हम कैसे measure करते हैं, how do we actually assess क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं है. ठीक है. Explain what constitutes intelligent behavior. अब हम बोल तो देते हैं that person in my class is very intelligent, बट किस ग्राउंड पे हम उसको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं? हम उसको क्रिएटिवली इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, या फिर हम उसको अकेडमिक लेवल पर इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट बोल रहे हैं? किस बेसिस पर हम उसको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं? तो क्या इंटेलिजेंट बिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं. Learn how psychologists assess intelligence to identify mentally challenged and gifted individuals. कैसे हमने दो कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर रखा है, विच इज़ एक होती है नॉर्मल रेंज एंड दो एक्सट्रीम्स पर लाई करते हैं, आइदर मेंटली डिसेबल्ड और चैलेंज्ड पीपल. ठीक है. एंड एक एंड पर होते हैं गिफ्टेड इंडिविजुअल्स जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है. तो हाउ डू यू असेस इंटेलिजेंस इन दोज टर्म्स? अंडरस्टैंड हाउ इंटेलिजेंस हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स. अब आप जब नोटिस करोगे तो इंडिया की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इज़ प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज प्रीच. तो वो चीज़ क्यों है, किस चीज़ पर बेस्ड है, वो हम पढ़ने वाले हैं. एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड. मैनी पीपल यूज टू मिक्स द डिफरेंस बिटवीन इट एंड दे जस्ट नलिफाई द डिफरेंस बिटवीन इट. बट उनका इन इट्स ओन सेंस इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड बहुत डिफरेंट होते हैं, उनका मीनिंग ही बहुत डिफरेंट होता है. तो वो हम पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. वील स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. अब हमें भी पता है आप और आपके फ्रेंड एकदम सेम तो नहीं हो, दो योर इंटरेस्ट माइट अलाइन, योर क्वालिटीज़ माइट अलाइन, बट क्या आप एकदम सेम हो? आर यू गाइज लाइक एक्चुअली सेम और यू आर सिमिलर? ठीक है. तो वो चीज़ हमें बताती है कि इंडिविजुअल वेरिएशंस तो होती है अक्रॉस ऑल स्पीशीज़. एक दो अपन मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ह्यूमंस हैं, दोनों में सेम क्वालिटीज़ हो सकती है, दोनों के सेम इंटरेस्ट हो सकते हैं, बट आर वी एक्चुअली द इंटायरली सेम? नहीं. वी वेराई फ्रॉम ईच अदर, वी वेराई इन आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है. वी वेराई इन आर फिजिकल डायमेंशंस ऑल्सो. डिफरेंस होता है.
वो डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज वेरिएशन इज समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल इन दिस इंटायर वर्ल्ड. हमारे आसपास की चीज़ें भी, हर चीज़ एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती है, सेम नहीं होती है, वहाँ पर भी डिफरेंस होता है. इफ़ यू सी टू रोजेज, इवन दो फ्लावर्स भी आप देख रहे हो तो उसमें भी आपस में डिफरेंस है. इफ़ यू टेक टू रेड रोजेज, एक थोड़ा पतला और लंबा हो सकता है, एक थोड़ा ज़्यादा वाइट ओपन खिला हुआ हो सकता है. So there are differences, right? So similarly in humans also, in individuals also differences होते हैं, ठीक है. एंड हमारे इंसानों में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट ट्रेट्स का विच एक्चुअली मेक अस डिफरेंट. सो वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी वेराई करते हैं. वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे वेराई कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर. अब आपका और आपके फ्रेंड की एकदम हाइट सेम हो ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है. आपके हेयर कलर सेम हो ज़रूरी तो नहीं है, आप वेट में भी डिफर करते हो. So that is how you are different in physical characteristics also and also along psychological dimensions. कोई इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई थोड़ा डल हो सकता है, कोई थोड़ा डोमिनेंट नेचर का हो सकता है कि मेरी ही बात सुनो, और कोई सबमिसिव हो सकता है कि उसको जो भी कोई इंसान कन्विंस करना चाहे वो हो जाए, बात मनवाना चाहे वो हो जाए, सबकी बात मानते रहे, ठीक है. कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, कोई इतना क्रिएटिव ना हो, ठीक है. सो देर आर वेरी मेनी डायमेंशंस जिसके बेस पर आप डिफर कर सकते हो विद अनदर पर्सन, अनदर इंडिविजुअल. सो दिस लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस एंड डिफरेंट ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट इन वेराइंग डिग्रीज इन एन इंडिविजुअल. इसका क्या मतलब हुआ कि क्रिएटिविटी मेरे में बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे में बहुत कम भी हो सकती है. मेरे में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है. एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो मेरी इंटेलिजेंस लेवल भी उतनी ही ज़्यादा होगी. क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इंटेलिजेंस मिड लेवल पर या थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है. इन दिस सेंस ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक एज शी और ही exemplifies a typical combination of various traits. कि हर इंसान सेम कॉम्बिनेशन नहीं शो करता है टू द in their actions, in their behavior. वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को पोर्ट्रे करता है while they express themselves. अब क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं, वाई डू वी डिफर एंड कैसे डिफर करते हैं, क्या बेसिस है जिसके बेसिस पर हम ये डिफरेंसेस देख रहे हैं. So the subject matter of study is individual differences. अब साइकोलॉजिस्ट के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. कि इंसानों की बिहेवियर पैटर्न्स में क्या वेरिएशंस है, क्या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है हर इंडिविजुअल के पास, वो क्या चीज़ बेटर कर रहा है, वो क्या चीज़ बेटर कर रहा है, ठीक है. दो इंडिविजुअल्स कौन से काम अच्छा कर रहे हैं, कौन सा ख़राब कर रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक उनमें ऐसी है, वो चीज़ों के बेस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं. अब काफ़ी लोग तो मानते हैं कि काफ़ी साइकोलॉजिस्ट बिलीव कि पर्सनल ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ये डिफरेंसेस होते हैं. बट कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमारे बिहेवियर्स सिचुएशनल फैक्टर्स के थ्रू ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इस लैटर व्यू को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशनिज्म. अभी हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में. नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑफ जो साइकोलॉजिस्ट को इंटरेस्ट करती है और वो जिस चीज़ पर हमारे बिहेवियरल डिफरेंसेस को एलोकेट करते हैं, वो होता है सिचुएशनिज्म. जिसका क्या मतलब है? सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंसेस वंस बिहेवियर. कि मेरे को जिस सिचुएशन में तुम डालोगे उसमें जैसे मैं एक्ट करूँगी वो डिफ़र करेगा. इफ़ आई एम इन अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट मेरा बिहेवियर अलग होगा, एंड इफ आई एम इन अ वेरी टॉक्सिक, इन अ वेरी डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट, वहाँ पर मेरा बिहेवियर बहुत अलग होगा. दो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, मेरे ट्रेट्स सेम शो हो रहे हैं, बट मेरा बिहेवियर में डिफरेंस आएगा इन बोथ द सिचुएशंस. For example, a person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in presence of her or his top boss. अगर मेरे सामने एक अथॉरिटी लेवल फिगर खड़ा है तो मैं ऑब्वियसली मेरी जो एक्चुअल ट्रेट्स होंगे या मेरे जो एक्चुअल नेचर होगा उसको थोड़ा सबमिसिव में वे में कन्वर्ट करके उनसे उस तरह से बात करूँगी. सो व्हाट इज़ दिस? सिचुएशनल वेरिएशन. अब इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ कोर्स हमारी एक पॉइंट है ऑब्वियसली कि मैं हर इंसान की तरह सेम एक्ट नहीं करूँगी, बट विद इन मी ऑल्सो मैं हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह से एक्ट करूँगी, ठीक है. समटाइम्स द सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस आर सो पावरफुल दैट इंडिविजुअल्स विद डिफरिंग पर्सनैलिटी ट्रेट रिस्पॉन्स टू देम इन द सेम वे. नाउ थिंक, I am a very dominant person and one of my friends is a submissive person.
तो वो मैं तो टॉप बॉस के सामने कन्वर्ट हो रही हूँ कि ऑलरेडी सबमिसिव वे में एक्ट कर रही हूँ, और वो सबमिसिव है ही, तो वो सबमिसिव एक्ट वे में ही एक्ट करेगी. सो नाउ दो हमारे पर्सनल ट्रेट्स बहुत डिफरेंट है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा नेचर बहुत डिफरेंट है, बट क्या हम उन अथॉरिटी के सामने सेम तरह से एक्ट कर रहे हैं? येस वी आर. वाई? बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल इन्फ्लुएंस. तो हमारे डिफरिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने के बावजूद हम सेम तरह से जो बिहेवियर शो कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ऑफ सिचुएशनिज्म, विच सेज कि हम जिस सिचुएशन में प्लेस्ड हैं वो भी हमारे बिहेवियर में फ़र्क लाता है. द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपको रिसीव होता है. ठीक है. नाउ हाउ डू वी असेस दीज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जिसके बेसिस पर हम डिफर करते हैं? Now, psychological attributes are involved in very simple phenomena like in time taken to react to a stimulus, which is reaction time, and also in highly global concepts like happiness. It is difficult to count and specify the number of psychological attributes that can be assessed. बहुत ज़्यादा difference हो सकता है, बहुत सारे attributes होते हैं जिनमें हम vary करते हैं. So it's difficult to count and specifically बताना कि कितने attributes आप में हैं जिसके along आप differ कर सकते हो from another individual. एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ही जनरल फिनोमिनाज, बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमिनाज लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, इन सब में भी अवेलेबल हो सकते हैं. एंड बहुत ही स्पेसिफिक सिंपल फिनोमिनाज लाइक रिएक्शन टाइम वहाँ पर भी हो सकते हैं. अगर एक इंसान बहुत काम है, ठीक है, तो उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है वो कामनेस, तो उसका रिएक्शन टाइम विल बी मोर, कि वो टाइम लेकर रिएक्ट करेगा, वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज़ पे. एंड कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, तो उसका रिएक्शन टाइम विल बी वेरी रैपिड, वेरी क्विक, क्योंकि उसका टेंडेंसी है टू रिएक्ट फास्ट. ठीक है. तो इस छोटी सी चीज़ में भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से फ़र्क पड़ता है. ठीक है. असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. अगर आपको किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है तो पहले आप उसको असेस करोगे. अब असेस से क्या मतलब हुआ? असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स and then their evaluation using multiple methods. ठीक है. आप पहले मेजर करोगे कि वो एट्रीब्यूट कितना अवेलेबल है, कितनी लेवल पर अवेलेबल है, एंड देन उसकी इवैल्यूएशन कि उसके थ्रू क्या क्या रिजल्टिंग बिहेवियर्स हैं. ठीक है. Any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured using scientific processes. अगर साइंटिफिक प्रोसीजर से हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे तो हम उसको एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, बिकॉज इफ इट इज़ एन एट्रीब्यूट इट हैज़ टू बी इन नंबर्स, इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द procedures which we use. ठीक है. For example, when we say Harish is dominant, we are referring to the degree of dominance in Harish. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट हमारी खुद की असेसमेंट पर है, इनफॉर्मल असेसमेंट पर बेस्ड है, कि हमने उसमें डोमिनेंस नोटिस करी है, हमने देखा है कि वो किसी की बात नहीं सुनता, उसको हमेशा खुद की चलानी होती है. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन आवर ओन असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस इन हिम. ठीक है. तो हमारा असेसमेंट इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है. अब फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक प्रोसीजर्स पर बेस्ड होता है. आप कुछ टेस्ट करोगे, कोई उसको सेट ऑफ क्वेश्चंस दोगे जिसके बेस पर उसकी डोमिनेंस लेवल क्या होगी, असेस होगी, एंड देन यू विल नो कि वो डोमिनेंट है या सबमिसिव है. ऑन दी अदर हैंड हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट वेराई कर सकता है फ्रॉम केस टू केस, कि मुझे हरीश तो डोमिनेंट लग सकता है और मनीष मुझे बहुत सबमिसिव लग सकता है. एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर, जैसे कि अगर मैं हूँ और आप हो और हम सेम इंडिविजुअल को असेस कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके साथ आपकी बात मान लेता हो तो आपको वो सबमिसिव लगे, आपको वो नॉर्मल लगे, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता हो तो मुझे क्या लगे कि ये तो बहुत डोमिनेंट है, इसका तो नेचर ये कि किसी की बात नहीं सुनेगा, बस खुद की चलाएगा. सो इट may assess from differ from case to case also and from assessor to assessor also, and therefore it is open to subjective interpretations. मेरे reasons for calling him dominant अलग होंगे, आपके reasons for calling him submissive अलग होंगे. Psychologists are trained in making formal assessment of psychological attributes because that is more reliable. ठीक है. Once assessment is done, we can use this information to predict कि एक इंसान कैसा behave करेगा फ्यूचर में. जैसे हमने अगर बोला कि हरीश डोमिनेंट है साइंटिफिकली, तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा? वी मे प्रिडिक्ट दैट इफ हरीश इज गिवन अ चांस टू लीड अ टीम, ही विल मोस्ट लाइकली बी एन अथॉरिटेरियन लीडर, क्योंकि वो किसी की बात तो सुनेगा नहीं, अपनी बात ही दूसरों पे गिव इन करेगा या पोक करेगा. तो वो अथॉरिटेरियन लीडर बनेगा कि मेरी अथॉरिटी रहनी चाहिए, मैं जो बात बोलूँ वो फॉलो होनी चाहिए.
ठीक है। और अगर हमारा प्रिडिक्टेड कॉन्सिक्वेंस ऐसा नहीं है जो होना चाहिए, अब कौन चाहेगा कि इतना अथॉरिटेरियन लीडर हो जो टीम की बात ही नहीं सुन रहा, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं सुन रहा, समझ ही नहीं रहा है किसी बात को। तो हम फिर उसमें इंटरवीन करना चाहेंगे कि ऐसा बिहेवियर ना आए, ठीक है। हम एक चेंज लाना चाहेंगे उस इंसान के बिहेवियर में, ठीक है। सो द एटीट्यूड चोजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आर पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है। अभी टीम लीडर बनाना है, हमें चूज करना है, तो हम असेसमेंट उस चीज़ का करेंगे कि इंसान में डोमिनेंस कितनी है, अग्रीएबलनेस कितनी है, कितना ज़्यादा वो इंटरपर्सनल स्किल्स है उस इंसान में। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स को नोट करते हुए हम हमारा टीम लीडर चूज करेंगे। एंड अगर उस टीम लीडर का कोई पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसा हो, तो आप उसमें चेंज लाने की कोशिश करोगे बिफोर दैट इंसिडेंट एक्चुअली हैपन्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प अ वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशंस, हम उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नोट करेंगे। अगर इफ अ पर्सन फेल्स टू एडजस्ट विद मेंबर्स ऑफ हर और हिज फैमिली और नेबरहुड, हम देखेंगे उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कि यार क्या चीज़ है ऐसी, क्या ये इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का है, क्यों ये बाकी लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ऐसा क्या ट्रेट है इसके अंदर, ठीक है। फॉर अ पुअरली मोटिवेटेड पर्सन, हम उसके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखेंगे कि क्या पता वो जिस फील्ड में है वो उसको इंटरेस्ट ही ना करती हो, वो उसको मोटिवेट ही ना करती हो काम करने के लिए, तब हम एक अलग डायमेंशन देख रहे हैं। सो दैट इज़ वाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग एंड प्रोसीजर्स to evaluate abilities, behaviors and personal qualities of individual, जिसके बेसिस पर हम देख पाएँ कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कितना ज़्यादा डोमिनेंट है एक इंसान में, ठीक है। अब कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 5 डोमेन्स राइट नाउ, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि स्पेसिफिकली एक नंबर बताना तो इम्पॉसिबल है, बट 5 काफ़ी कॉमन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी NCERT में डिस्कस्ड है। सो वील स्टडी अबाउट देम एंड देन वील एंड दिस लेक्चर हियर, ठीक है। Psychological attributes are not linear or unidimensional. They are very complex. They are expressed in terms of dimensions. ठीक है, एक line is merely a aggregate of many points. A point occupies no space. But जब हम एक box को देखते हैं उसमें इतने सारे points हैं, उसके combination से इतने dimensions निकल पाते हैं। तो एक बॉक्स को जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, हम उसको एक डायमेंशंस के थ्रू ही समझ पाएंगे, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो सिमिलर इज द केस विद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वो भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं, उसे भी हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। इफ़ यू वांट अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन, आपको डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को असेस करना पड़ेगा, ठीक है, और डिफरेंट एरियाज में करना पड़ेगा, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन में, इमोशनल डोमेन में, सोशल डोमेन में। तो अब हम इस चैप्टर में कुछ 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, जो मेजरली डिस्कस हुआ है आगे पूरे चैप्टर में। Intelligence is the global capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. कि आप कैसे पूरे आपके आसपास के वर्ल्ड जो है उसको समझ पा रहे हो, इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट से डील कर पा रहे हो, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो उससे कैसे आप इफेक्टिवली डील कर रहे हो, कैसे आप रैशनल डिसीजन ले रहे हो, वो होती है इंटेलिजेंस। तो हमें एक जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस अगर पता करनी है एक इंसान की कि वो कितना दिमाग से सोच पाता है, वो कितनी कॉम्पिटेंसी रखता है, तो हम उसका इंटेलिजेंस लेवल देखेंगे, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स हु आर लो इन इंटेलिजेंस वो स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस में थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सक्सीड नहीं करेंगे लाइफ में। इंटेलिजेंस इज नेवर एवर रिलेटेड टू सक्सेस, ठीक है। इंटेलिजेंस इज नॉट एसोसिएटेड टू हाई टेस्ट स्कोर्स। अगर आपके टेस्ट स्कोर्स कम हैं तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकते हो थ्रू वेरियस अदर थिंग्स, थ्रू वेरियस अदर एट्रीब्यूट्स दैट यू मे पजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है इंडिविजुअल का अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, कि अगर मेरे को आप किसी मैकेनिकल फील्ड में डालो तो क्या मेरे में पोटेंशियल है टू वर्क वेल देयर, क्या मैं वहाँ पर कुछ इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगी, क्या मेरा एप्टीट्यूड है उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिडिक्ट कि एक इंडिविजुअल को अगर एक इन्वायरमेंट दिया जाए, पर्टिकुलर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो क्या वो स्किल्स सीख पाएगा टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। अ पर्सन विथ हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैन प्रॉफिट फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड कैन डू वेल एज एन इंजीनियर, ठीक है। तो जिनमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, जिनमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, वो यूजुअली साइंस स्ट्रीम लेते हैं ताकि वो उस तरह अलाइन हो जाए, ठीक है। सिमिलरली जिसके पास हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड होगा तो that person has a chance to become a good writer, ठीक है।
Then interest is an individual's preference for engaging in one or more activities. कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ. मैं डांस करना ज़्यादा पसंद करूँगी या मैं स्विमिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगी. व्हाट इज़ माई इंटरेस्ट, विच एक्टिविटी विल आई एंगेज इन मोर. ठीक है. सो दिस असेसमेंट विल हेल्प कि एक इंसान अगर कोई अपना स्ट्रीम चूज़ करना चाहता है, कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है, तो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी क्या प्रेफरेंस है. वो कॉमर्स फील्ड में जाके एक्सेल करेगा या वो ह्यूमैनिटीज़ में जाके एक्सेल करेगा. उसके जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में लाई करते हैं या वो ह्यूमैनिटीज़ में लाई करते हैं. दैट इज़ हाउ. ठीक है. सो दिस हेल्प्स इन प्रमोटिंग लाइफ सेटिस्फैक्शन कि आप जो चीज़ पसंद करते हो आप उसी चीज़ को ऑप्ट इन करते हो एंड देन यू परफॉर्म बेटर ऑन योर जॉब. देन पर्सनैलिटी क्या होती है, रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है, जो डिफरेंसेस लाती है इन योर बिहेवियर. तो पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करते हैं कि आप डोमिनेंट हो या सबमिसिव हो, आप आउटगोइंग हो या सोशली विड्रॉन हो, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपका मूड बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं या फिर आप बहुत स्टेबल रहते हो इमोशनली इन टफ सिचुएशंस ऑल्सो. तो वो सारी चीज़ें असेस करता है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट. तो इससे हमें समझ आता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा रहेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या वो फ्यूचर में किस सिचुएशन पे कैसे बिहेव करेगा. ठीक है. देन वैल्यूज़ होते हैं हमारा लास्ट एंड फिफ्थ एट्रीब्यूट, जो होता है हमारे बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर कि एक इंसान बिहेव कर रहा है तो उसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए. दिस इज़ एन आइडियल थिंग टू डू. ठीक है. तो अब एक इंसान की एक स्टैंडर्ड बिलीफ सिस्टम हो सकता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हो सकती है कि एक इंसान ऐसे ही एक्ट करेगा तो वो अच्छा है. ठीक है. तो मैं अगर किसी इंसान, मेरी कुछ वैल्यू का स्टैंडर्ड है तो मैं सामने वाले इंसान को भी ऐसा ही प्रेफर करूँगी जिसकी वैल्यूज़ सेम हो, जिसकी वैल्यूज़ और बिलीव्स मेरे से अलाइन करते हो, सो दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन आवर बिलीव्स. ठीक है. कि हम एक बात पे अग्री करें एक दूसरे से. सो दीज वैल्यूज़ कैन बी रिलेटेड टू पॉलिटिकल डोमेन, रिलीजियस डोमेन, सोशो इकोनॉमिक डोमेन्स, कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है और सामने वाले का बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, उसको भी असेस करते हैं थ्रू दीज टेस्ट. ठीक है. So this was it for today's lecture. Next class में we'll start with assessment methods and then हम continue करेंगे with intelligence. So yes, if you like this lecture, do continue with me throughout the series and you will love it. And do register for the online classes. You will love it and I do really want to interact with you guys and I'm waiting for you guys to register so that we can start with it as soon as possible. So I'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.